Hello everyone. Our objective is students will be able to apply the Pythagoras theorem. अभी देखते हैं Pythagoras theorem होता क्या है. तो Pythagoras theorem is applicable only for a right-angled triangle. So here I have a right-angled triangle PQR in which angle Q is 90 degrees. In a right-angled triangle, one side is called as hypotenuse. Which side is called hypotenuse? The longest side is called hypotenuse. How do I identify it? It's the side opposite to 90 degrees. So this is 90 degrees. I look exactly opposite to this angle and I find this side, which is PR, and that is my hypotenuse. In this triangle, this angle B is 90 degrees. So I look opposite from it and the side AC is my hypotenuse here. So Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to side 1 squared plus side 2 squared. So here the hypotenuse is PR. So PR squared is equal to, the other two sides are PQ and QR. PQ squared plus QR squared. This is my Pythagoras theorem. In this triangle, we identified that the hypotenuse is AC. So I write AC square, that is hypotenuse square, is the sum of the squares of other two sides. The other two sides are AB and BC. So AB square plus BC square. And this is my Pythagoras theorem. I hope the Pythagoras theorem is clear to you. Now let's see how we apply it. तो ये मेरा पहला सवाल है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. तो मुझे डायगोनल के बारे में जानकारी दी है और मुझे पता है कि हम एक स्क्वायर की बात करें. तो लेट्स स्टार्ट. हमें पहले कभी भी we'll have to make a diagram. So let's make a diagram. So this is my square. This is the diagonal of the square. I name the square A, B, C, D. The figure is not given in the question, so you'll have to make the figure. I've been given that its diagonal is 10 centimeter. So I'm labeling the diagonal as 10 centimeter. We know that all angles of a square are 90 degrees. So this angle will also be 90 degrees. I'm saying that let my side be x. I need to find the side of the square. So let my side be x. All sides of the square are equal. So this side is x, this side will also be x. I'm going to specifically focus on this triangle and tell me what type of triangle is it. It's a right angled triangle, which means I can apply Pythagoras theorem in it. I can apply Pythagoras theorem for any right angled triangle. So let's begin. I say that let the side of the square be x centimeter. So AB
and BC are both x centimeter. Now, this is a very important statement that I need to make. I need to say that angle ABC is 90 degrees. And how do I know that? It's the property of a square. मुझे पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, तो ये बताना जरूरी है कि एंगल 90 डिग्री क्यों है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो ये जो ट्रायंगल है उसमें हम अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ABC, which is the hypotenuse, the diagonal is the hypotenuse, so it's right opposite to 90 degrees, so AC square is equal to AB square plus BC square। रीजन लिखना जरूरी है। वैल्यूज डालना चालू करते हैं। AC की वैल्यू पता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज x स्क्वायर प्लस BC इज x स्क्वायर। ये दो तराजू के पैन की तरह है। दीज आर लाइक पैन्स ऑफ बैलेंस, बीच में इक्वल टू साइन, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला पैन, राइट साइड वाला पैन। लेफ्ट साइड वाले पैन में 10 स्क्वायर इज 100, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिकम्स 2 टाइम्स x स्क्वायर। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x स्क्वायर को यहाँ पे रखता हूँ, 2 को इस तरफ जाके मैं डिवाइड करूँ, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाले पैन में आ गया 50, ये वाले पैन में आ गया x स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50, यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, मतलब इट्स x। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 एक सर्ड है, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम प्राइम फैक्टर निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। मैं प्राइम फैक्टर्स निकालू तो मुझे आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे मुझे एक 5 और 5 की जोड़ी दिखती है, तो 5 स्क्वायर रूट साइन के बाहर आ गया और अंदर बचा 2। इस तरह हम सर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का वैल्यू आया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। x मेरा क्या है? स्क्वायर का साइड है। अभी मैं पेरीमीटर निकालना चाहता हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स साइड। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, पूरे बाउंड्री को हम ऐड करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों साइड इक्वल है तो 4 बार साइड, दैट इज 4 टाइम्स साइड क्या है? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि हमें आया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो जो पूछा था वो दोनों चीजें हमें मिल गई, एक था साइड, दूसरा था पेरीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि हम स्क्वायर के बारे में कुछ करने वाले हैं और साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, डायगोनल फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा स्क्वायर, इसको नाम देते हैं ABCD। ये है उसका डायगोनल,
ये एंगल 90 डिग्रीज है। हम ये ट्रायंगल को देखने वाले हैं। किस टाइप ऑफ ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। सो अभी मैं कहूंगा ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह हमें दिया गया है। आई विल से दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है। अभी ये ट्रायंगल पे फोकस करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीजन लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है कितना है, ए बी स्क्वायर पता है 10 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का वैल्यू भी पता है 10 स्क्वायर। दिस इज 100 प्लस 100 that is 200. I take square root on both sides, so I get AC as square root of 200. This is a third again. So I find its prime factors. 2 times 2 times 2 times 5 times 5. So यहाँ पे दो जोड़ी हमें दिख रही। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट साइन के 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 2। 2 5s are 10, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 200 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के मैंने किया है। 2 times 100, 2 times 50, 2 times 25, 5 times 5, 5 times 1. So these are the prime factors that I used to simplify the surd. So the value of the diagonal AC is 10 square root of 2 centimeter. I say that the length of the diagonal of the square is 10 square root of 2 centimeter. I hope this is clear. अगला सवाल देखते हैं। Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हम रेक्टेंगल के बारे में कुछ देख रहे हैं और उसका डायगोनल फाइंड करना है। फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमें फिगर ड्रॉ करके स्टार्ट करना है।
तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं उसको नाम देने जा रहा हूँ ए बी सी डी। मैं ये रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। मुझे दिया है कि रेक्टेंगल का लेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो ये रहा 35 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, वो भी मार्क कर लिया। मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे डायगोनल फाइंड करना है, मतलब AC फाइंड करना है। तो मैं पहले मेंशन करता हूँ कि एंगल ABC इज 90 डिग्रीज, और ये क्यों 90 डिग्रीज है? बिकॉज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। बहुत जरूरी है ये मेंशन करना। तो मैं ये ट्रायंगल में अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। सो ऐसे इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट द रीजन एज पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर के जगह AC स्क्वायर, AB स्क्वायर के जगह 12 स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर के जगह 35 स्क्वायर। 12 स्क्वायर है 144, और 35 स्क्वायर है 1225। तो AC स्क्वायर आ गया मेरा 1369। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो AC है स्क्वायर रूट ऑफ 1369। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि 1369 का स्क्वायर रूट क्या है? तो ये टेक्निक सीख लेते हैं। मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड दिखेगा कि अगर नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है, नंबर का यूनिट प्लेस 2 है तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 है, 3 तो 9, 4 तो यूनिट प्लेस 6 है, 5 तो यूनिट प्लेस 5, 6 तो 6, 7 तो 9, 8 का 4, 9 का 1। यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस है 9, मतलब जो स्क्वायर रूट है उसका यूनिट प्लेस 9 वाले कौन कौन है? ये और ये। तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 3 हो सकता है, या स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 7 हो सकता है। अभी मुझे ये भी पता है 10 का स्क्वायर है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। 1369 किन दोनों के बीच में है? 900 और 1600 के बीच में है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 30 और 40 के बीच में होना चाहिए।
क्या क्या स्क्वायर रूट हो सकता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 या फिर 39। लेकिन ये यूनिट प्लेस के हिसाब से मुझे पता है कि स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 3 होगा या फिर 7 होगा, जिसका मतलब ये नंबर दो ही हो सकते हैं, 33 या फिर 37। 33 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आ जाएगा, 37 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी यूनिट प्लेस में 9 आ जाएगा। अभी ये नंबर किसके करीब है? 900 के करीब है या 1600 के करीब है? तो हमें दिख रहा है कि ये नंबर 1600 के करीब है, जिसका मतलब उसका स्क्वायर रूट 37 होगा, 33 नहीं। और मैं कंफर्म भी कर सकता हूँ, 37 मल्टीप्लाइड बाय 37, 7 टाइम्स 7 49, 7 टाइम्स 3 21 प्लस 4 25, 3 टाइम्स 7 21, 3 टाइम्स 3 9 प्लस 2 11, and I add 1369. So this is a technique that you can use for finding any square roots. After a while, you will remember a lot of squares and square roots too. But if you see a very new perfect square, to find its square root, you can always use this technique. So I know that AC now is 37. So I say that the length of the diagonal of the rectangle is 37 centimeter. I hope this is clear. Thank you.